This conference will now be recorded. So, uh, in the previous session, we have discussed about how to insert a record by using a programmatic approach from the backend by using the Apex class, right? So, we have inserted a record for the hospital branch, right? And I also asked you to try for the patient, right? But you were not able to insert the record for the patient. The reason behind that is the basic reason is that in case of the patient, there is a master detailed relationship field available, right? That too with the home branch, hospital branch rather, right? So, and we know that the master detailed relationship field is mandatory field. Unless and until we don't have any value for this hospital branch in the field available in the patient object, we cannot insert the record, right? So for that purpose, what we need to do, if you wanted to programmatically insert the record, that is the patient, first of all, we need to insert the hospital branch and then use that ID, right? Use that ID to insert the patient record. Okay, so we will start programming, we will start inserting the record, or we will start writing the program for this. So for that purpose, what we need to do, we just have to go to the setup and then go to the developer console, right? So once you reach to this developer console, okay, sometimes it get minimized. Okay, you just have to click here. Okay, once you reach to this developer console, you may have some existing program that you have written earlier. Okay, you just have to cancel it, or you can keep it as keep that as it is also. So as I wanted to uh, 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 create a new Apex class, just go to the file and then file, from that drop down select new, and from that new select Apex class. Now, what I am trying to do over here, I'm going to write a program that is the Apex code. What it will do, it will first of all insert the hospital branch, and then उसको पेशेंट को हम इंसर्ट करेंगे, राइट? अगर हम डायरेक्टली पेशेंट को इंसर्ट करेंगे, अभी भी इफ यू कैन, लाइक if I go to that original application, that is admin says what is the procedure to insert a record from the admin thing. We have to go to this application, right? What are the steps? If I go to this application, okay, just hold on, I will show you that also, what is the reason for that, right? So view all. Once you reach to your application, then you have to um, I just wanted to demonstrate that you cannot insert the patient without the hospital branch, right? वो आपको एरर तुरंत एरर देगा. So just try to insert the patient, new patient record. Just try to create a record. I will enter the patient name, like say Umesh, and if I just hit the enter button or the save button, then it will not save, right? It will show some error. What is that error? कि hospital branch ये एक mandatory है, right? तो सिमिलरली आप हॉस्पिटल ब्रांच को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? बट हॉस्पिटल ब्रांच मीन्स क्या है? व्हाट इज हॉस्पिटल ब्रांच? if I step down and search for this hospital branch somewhere around, then here it is, right? This hospital branch, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये एक पूरा रिकॉर्ड है, राइट? ये एक पूरा रिकॉर्ड है. ये अगर आप देखोगे, दिस इज माय सपोज कुलाबा, राइट? एंड देन दिस इज माय होल रिकॉर्ड. इस कुलाबा जो ब्रांच है हॉस्पिटल का, इसमें अलग अलग खुद के फील्ड्स है, राइट? जैसे हमने कल देखा, उसका नेम रहेगा, उसका वेबसाइट रहेगा, उसका कॉन्टैक्ट रहेगा, राइट? उसका एड्रेस रहेगा. उसमें खुद के बहुत सारे फील्ड्स है. बट ये फील्ड क्या कर रही है? हॉस्पिटल ब्रांच ये एक फील्ड है, राइट? दिस इज वन फील्ड, एंड दिस फील्ड बिलोंग्स टू विच ऑब्जेक्ट? पेशेंट ऑब्जेक्ट. मतलब पेशेंट ऑब्जेक्ट में बहुत सारे फील्ड्स है, जैसे नेम हो गया, राइट? लेट्स सी, पेशेंट ऑब्जेक्ट में हाउ मेनी फील्ड्स आर देयर?
पेशेंट ऑब्जेक्ट में ये तो नेम हो गया पहले, राइट। आफ्टर दैट देयर इज डेट ऑफ कॉल रहेगा, राइट। अलग अलग फील्ड है, इसमें क्या वैल्यू स्टोर होता है, व्हाट वैल्यू दिस पेशेंट नेम विल स्टोर, उमेश, राइट। व्हाट वैल्यू दिस डेट ऑफ कॉल विल स्टोर, जो डेट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लेट्स से 29, so what value it will store, it will store the 29 June, right, 2023, इसने ये वैल्यू स्टोर किया, राइट। सिमिलरली फीस ने क्या स्टोर किया, इसमें मैं डालता हूँ 1000 रुपीज, राइट, सो इट विल स्टोर 1000 रुपीज, ओके। देन सिटी से पहले हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्टेट, राइट। स्टेट, इफ यू सिलेक्ट द स्टेट देन you can select any state, right, let's say this state Madhya Pradesh, and then Madhya Pradesh, then select some cities, okay, let's say this city I have selected, right. Now what does it means, it means that these are the fields, right। नेम में क्या स्टोर हुआ है, उमेश, राइट। कॉल, डेट ऑफ कॉल में क्या स्टोर हुआ है, ये वाली डेट, राइट। सिटी में क्या स्टोर हुआ है, दैट सिटी, राइट। स्टेट में क्या सिलेक्ट हुआ है, मध्य प्रदेश। फीस में क्या सेव हो रहा है, फीस, दैट इज 1000 रुपीज, राइट। But here in case of this, right, this is your home branch, this is the relationship, this is not a normal field, ये normal field नहीं है। इसने खुद ने क्या किया है, इसमें सिर्फ कुलाबा ये नाम स्टोर नहीं किया है, राइट। इसने इसने जैसे ये वाले पहले वाले फील्ड्स ने क्या स्टोर किया है, सिर्फ ये वाले स्टोर फील्ड में सिर्फ उमेश सेव किया है, ये वाले फील्ड में सिर्फ डेट ऑफ कॉल सेव किया है, लाइकवाइज हियर इट इज नॉट सेविंग कुलाबा जस्ट एज अ सिंगल नेम, सिर्फ कुलाबा नहीं सेव किया है, इसने कुलाबा के अंडर जो भी, कुलाबा एक अलग से ऑब्जेक्ट का एक रिकॉर्ड है, राइट। उसमें कौन से फील्ड्स है, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका वेबसाइट, सभी का वैल्यू स्टोर करके रखा है, राइट। और यहाँ पे ये क्या स्टोर करता है, इसका आईडी, कुलाबा का आईडी, ये भले ही हमें यूआई पे दिखते समय on when we check this on the UI, right, I can see that nice logo, right, ये एक लोगो दिख रहा है आपको, ये रेड कलर में, राइट। ये लोगो और एक कुलाबा, राइट, ये हमें दिख रहा है। बट सिस्टम में बैकएंड में ये क्या स्टोर करता है, कुलाबा रिकॉर्ड का जो आईडी है। नाउ वी नो दैट when any record is created in a Salesforce, the Salesforce will automatically create some 18 character unique ID for each and every record, right? So इस वाले फील्ड में जो ये फील्ड है हमारी हॉस्पिटल ब्रांच, इट इज नॉट सेविंग और इट इज नॉट स्टोरिंग any value like kulaba and this symbol, rather it is storing some id, unique id वो स्टोर कर रहा है बैक एंड में पीछे। बट फ्रंट एंड में when we see, we can see this nice logo and this kulaba name, right, बट बैक एंड में वो क्या स्टोर करता है, id, राइट। सो जब मैं कुलाबा सिलेक्ट करूंगा तब जाके, या फिर कोई भी हॉस्पिटल ब्रांच सिलेक्ट करूंगा तब जाके वो रिकॉर्ड मेरा सेव होगा। when you press on the save button, then your record will be saved, see, right, this record is saved now. So programmatically also, when you wanted to insert the record, that is the patient record, उसमें mandatory fields जो है वो आपको डालने ही पड़ेंगे, right। और इसमें हमारे patient object में what is mandatory field, that is hospital branch, मगर वो कौन सा field है, that is master detail relationship। Then for that purpose we cannot give some name like kulaba, but we have to provide the id, right? So let's start writing the program for the same. It will be more clear when we will write the program, right? Just give the name to this apex class, right? Let me say patient, they have your pat, home, branch, you can give any name, right? Related records, okay, it should be meaningful name. Just hit enter, hit ok button, that apex class will be created, right? So this is the basic step, right? Your apex class is now created. Once this apex class is created, right, once this apex class is created, now what is the first step, you have to write down some method, right? So public static, you know that I told you that, just remember that this is the syntax, public static void, and then give method, right, method name, right, method name can be anything, right. Just I'm giving insert
related records. So this is my method. Just open curly brace and end curly brace, and then that's it, right? So now that is the thing. ये तो आपको पता ही चल गया होगा अभी तक. That first of all, create the structure for the Apex class, and then create the structure for this method. It is there. Now what I wanted to do over here, I wanted to insert the patient record. But for patient record, what are the mandatory field? एक तो उसका name, ये एक mandatory है, right? आपने बाकी के values put किए, that is fine, right? आपने अगर बाकी के value, if you give the value to all the fields, that is fine. But if you do not give the value for this hospital branch, then the record will not be created. Why? Because it's a mandatory field. I just showed this on the admin. That is the just now I have showed on the UI on the UI also. Right now, now to insert the patient record, I must have to have the ID of the hospital branch, right? So in order to have the ID of the patient branch, I first need to insert the record, that is hospital branch, right? So first what I will do, I will create the record of hospital branch. Once I will create the hospital branch record, Salesforce will automatically create the ID for that hospital branch, right? And by using that ID, I will insert the patient record. So what are the steps involved here? To insert the patient record, I first need to have what? ID, right? So in order to have that ID of hospital branch, first we will insert hospital branch record, and then we will insert patient branch, patient record. Okay, so just need to go to that just I need to first of all insert the hospital branch record. So what I will do, I will go to the object manager. Why? Because I need to get the API name of that hospital branch. So just go to the setup, and then go to this object manager. Once you will go to this object manager, let it be open, and then you have to search for hospital branch here, that object name. Okay, always follow these steps, because if you try to write it down by your own, na, this hospital branch and all these things, then you may find yourself in a trouble, क्योंकि ये नाम एकदम से यूनिक अच्छी तरह से लिखने पड़ते हैं, right? So what I wanted to do over here, I wanted to insert the record for the hospital branch first. So in order to insert the record for hospital branch, I need to create the instance of that object. कल ही मैंने बताया, right? That in order to do the or in order to do any operation with the Salesforce object, we need to create the instance of that object. Now, what do you mean by instance? Now, वो जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, एग्जांपल हॉस्पिटल ब्रांच में कौन से फील्ड्स अवेलेबल है? नेम, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट्स, एड्रेस, राइट? ये कहाँ पे है? सेल्सफोर्स ने अपने सर्वर में सेव किए हैं, और हमारा जो सर्वर है, दैट वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम पुणे, हमारा जो सर्वर है, इट्स लोकेटेड इन कोलकाता, राइट? AP16. सो ये जो सेल्सफोर्स का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, हॉस्पिटल ब्रांच हो या पेशेंट या हो, ये कहाँ पे सेव हुआ है? कोलकाता के सर्वर में, राइट? नाउ ये जो डेवलपर कंसोल है, राइट, ये जो कोड आप लिख रहे हो, ये लिख रहे हो, ये आपके लोकल सिस्टम में है, राइट? दिस इज लोकेटेड इन वेयर? आपके लोकल सिस्टम में है ये. सो ये कोड को नहीं समझ में आएगा कि ये हॉस्पिटल ब्रांच ये जो डाल रहा हूं मैं, व्हाट इज दिस? इट विल नॉट अंडरस्टैंड. सो ये आपको दिस प्रोग्रामिंग यू आर डूइंग इट ऑन योर लोकल सिस्टम, आपके लैपटॉप में करोगे. बट ये जो इसका नेम है, ये जो नेम है, ये कहाँ पे सेव है? ये सारा डेटा सेव है आपका आपका आपके सर्वर में, दैट इज इन कोलकाता, राइट? सो आपके लोकल सिस्टम को समझने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं, हम एक इंस्टेंस बनाएंगे. हम बोलते हैं ना, जैसे बोलते बोलते है ना, लेट्स टेक फॉर इंस्टेंस, ये समझो, है ना? इनफॉर्मली हम बोलते हैं ना, ये समझ जरा 2 मिनट, ये समझो, ये कंसिडर करो, वो कंसिडर करो. दैट इज मीन्स क्या है? 2 मिनट के लिए ये कंसिडर करो कि ये जो हॉस्पिटल ब्रांच का जो ऑब्जेक्ट है, उसको हम
किसी नाम से बुलाने वाले हैं और जो प्रोग्रामेटिकली हम आगे यूज करेंगे वो नाम है मेरा लेट से एच बी, राइट. यू कैन हैव एनी नेम टू दिस इंस्टेंस. तो मैं ये इंस्टेंस को नाम दे रहा हूँ एच बी, राइट. देन उसका सिंटैक्स क्या है, न्यू. ओके, सो अगेन दैट हॉस्पिटल ब्रांच ऑब्जेक्ट नेम एंड देन दिस. नाउ अभी आपके लोकल सिस्टम को समझ में आएगा कि ये जो कोड एडिटर है इसको समझ में आएगा कि भाई ये एच बी मतलब क्या है. सारे हॉस्पिटल ब्रांच ये जो ऑब्जेक्ट है ना, सारे प्रॉपर्टीज किस में आ जाएंगे, एचपी में आ जाएंगे. मतलब जो भी फील्ड नेम है उसका सारा आपके लोकल सिस्टम को अभी समझ में आएगा. एचबी बिलोंग्स टू व्हाट, हॉस्पिटल ब्रांच. कौन से ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है ये, एचबी हॉस्पिटल ब्रांच, राइट. नाउ वंस यू click on the once you select on this once you create the instance of that object, now you can do anything. What I wanted to do, I just wanted to insert a new record, right? So in order to insert the new record, just copy this instance name, right, and then paste it over here. Once you paste it, right, once you paste it, then just press on the dot. अगर डॉट प्रेस करने के बाद ये लाल रेड कलर में कुछ मैसेज आ रहा है, जस्ट इग्नोर दिस. अगेन आपके डॉट को क्या करो, जो आपने डॉट पेस्ट किया था उसको बैक स्पेस से डिलीट कर दो. ये मैंने डिलीट कर दिया. अभी यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है एचपी, राइट. सिस्टम ने सिस्टम इज अ this developer console is developed with some intelligence feature, artificial intelligence, right. So ये इंटेलिजेंस फीचर ने खुद सिस्टम ने खुद ने आइडेंटिफाई किया कि ये वाला मेरा इंस्टेंस है. तो जस्ट इसको सिलेक्ट कर लेना. अभी देखना सारे ही, मैं जैसे ही डॉट प्रेस करूंगा इस हॉस्पिटल ब्रांच में जितने फील्ड्स थे यहाँ पे आ जाएंगे. ये देखना मैंने डॉट प्रेस किया, सो ऑल द फील्ड्स हैज कम हियर. उसमें स्टैंडर्ड फील्ड भी हो सकते हैं एंड कस्टम फील्ड्स भी हो सकते हैं, राइट. नाउ इसमें से जो जो मैंडेटरी है दैट आई विल फिल. इसमें से मेरे ख्याल से मैंडेटरी है नेम, राइट. सो नेम अगर आप सिलेक्ट करोगे देन नेम इज इक्वल टू नेम, आप कुछ भी डाल दो. लेट्स से आई विल पुट द नेम एज दिस हॉस्पिटल एज अ दादर ब्रांच, राइट. You can have any name, just for your our understanding I am giving it as a dadar, right. Then again hb, right. Then dot, यहाँ पे क्या है फिर एड्रेस में ले लेता हूँ, right. This address is there, sorry, hb dot address, right. This is address. You can have the address as like equal to, you can give the address name like 354 behind SBI बैंक, है ना, ये कुछ भी नाम हो सकता है, राइट. SBI branch, you can have any name, any address. Just for understanding I am writing is a some random address, Dadar West, and some pin code like 22222, anything, okay. So or 333, right. Once you enter the name, then you can have any like website also you can enter this. What we are doing, we are just entering some random or just trying to create one hospital branch record, right. So next step is that, let's say some website we will enter. You just type web, then वो फील्ड का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो आपने क्रिएट किया था, right. Then website, you can have website name like uh, www.gtssolution.in, right. This let's say this ये मेरा क्या है, हॉस्पिटल ब्रांच का एड्रेस है, सॉरी वेबसाइट है. नाउ once this is done, once this is done, मतलब हमने अभी तक क्या किया है, हॉस्पिटल ब्रांच ही हम बना रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं. Now once this record, once all the fields value you have provided, right, once all the field value you have provided, then what you need to do, you just need to write some statement. Statement कौन सा है हमारा, रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए इंसर्ट. और किसको इंसर्ट करेंगे, जो हमने लोकल सिस्टम में इंस्टेंस बनाया था उसी को हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, राइट. सो दिस इज द इंसर्ट नेम, सॉरी दिस इज द इंस्टेंस नेम, insert hp, right. now as soon as you आपका सिस्टम क्या करेगा, जैसे ही आप ये कोड रन करोगे,
जैसे ही आप ये कोड रन करोगे, देन आपका सिस्टम क्या करेगा, क्लास नेम देखेगा, राइट। क्लास नेम के बाद मेथड नेम देखेगा, राइट। मेथड में आने के बाद वो देखेगा कि क्या है, पहले कि भाई इंस्टेंस बनाया है इन लोगों ने, राइट। सो वो इंस्टेंस के नाम से आगे का सारा शो रन करेगा। फिर बोलेगा ठीक है, ये इंस्टेंस में जो एचपी है उसमें नाम है दादर, राइट। फिर बोलेगा इंस्टेंस में जो एड्रेस है तो वो ये एड्रेस है, इंस्टेंस में जो वेबसाइट है तो ये वेबसाइट है, राइट। फिर उसके बाद में उसको स्टेटमेंट मिलेगी कि इंसर्ट एचबी, तो वो बोलेगा चलो ठीक है, ये जो रिकॉर्ड है, ये जो वैल्यू है हॉस्पिटल ब्रांच में डाल देते हैं। सो एज सुन एज वो इंसर्ट स्टेटमेंट रन होगी, तो आप बाय दैट टाइम हॉस्पिटल ब्रांच का नया रिकॉर्ड दादर के नाम से क्रिएट हुआ होगा, राइट। सो जब रिकॉर्ड क्रिएट होता है तो सेल्सफोर्स ऑटोमेटिकली क्या जनरेट करेगा, 18 कैरेक्टर आईडी। क्या जनरेट करेगा, 18 कैरेक्टर आईडी। नाउ वी डू हैव व्हाट, आईडी, हॉस्पिटल ब्रांच का आईडी हमारे पास है, राइट। नाउ यू कैन डू और यू कैन इंसर्ट द पेशेंट रिकॉर्ड, राइट। नाउ फॉर दैट पर्पस, नाउ वी आर इन आवर लोकल सिस्टम, व्हाट वी आर हैविंग, हॉस्पिटल ब्रांच का आईडी हमारे पास मिल जाएगा, right। Now we will try to insert the patient record. So for that purpose, same thing, just go to this object manager, right, and inside this search box, you have to search for what, patient record or patient object rather, right. Just go to this, just hold on for a second. Okay, just search for patient. Once you search for patient, all the patient, this patient object will populate. You just need to copy this API name. So अभी patient object, patient record को insert करना है। Then again, किसी भी object के साथ deal करना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, local system में instance create करना पड़ेगा, right? Instance create करने के लिए क्या करते हैं, simple steps, right? कि object का नाम लिखो, instance का कुछ temporary नाम दे दो, right? मैं नाम देता हूँ Pat. Okay, you can give any name equal to new, then patient API name this, right. This is how the patient instance is now created. Okay. Now once this patient instance is created, now again same step, अभी हमें क्या insert करना है, patient record, right. So what you can do, pat dot, so pat के pat dot जैसे ही आप प्रेस करोगे तो सारी इसमें पेशेंट में जो जो फील्ड्स है वो ऑटोमेटिकली आते जाएंगे, राइट। सो हमें पहले नेम देना है, patient name, we can give anything, like I'm giving the name as say Satish. Okay, you can have any name, right? Satish. After once you have done this, then we can give any name in next field that we can give, like pat dot fees, second field. Okay, so once you select this fees, then you can give any value like 1000, right. Now the thing to remember here is that ये जो वैल्यूज है ये क्या है, नंबर है, राइट। तो नंबर फीस जो है इट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू, और ये जो नाम है इट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू, राइट। ये स्ट्रिंग को हमेशा हमें किस में लिखना पड़ता है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में, राइट। बट नंबर्स को यू डोंट नीड टू राइट इट इनटू द इन्वर्टेड कॉमर्स, यू कैन इक्वल टू डायरेक्टली वैल्यूज लिख देंगे। ओके, सो ये डिफरेंस है कि स्ट्रिंग रहेगा, न्यूमेरिक अगर स्ट्रिंग वैल्यू रहेगा, स्ट्रिंग मींस व्हाट, अल्फाबेटिक, तो उसको आपको किस में लिखना है, इन्वर्टेड कॉमर्स में, राइट। एंड अगर न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा तो डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन द वैल्यू। दिस इज द basic difference, right. Now once you done this, now next thing is that what is the mandatory field, hospital branch. Okay, so inside this hospital branch, now here also you can see, just a second, I did it very fast. So pat dot, क्या सर्च करेंगे हम, कौन सा अभी हमें कौन सा मैंडेटरी है इसमें, हॉस्पिटल ब्रांच, राइट। सो हॉस्पिटल ब्रांच के लिए सीधा सर्च करो OHO, राइट। सो आपका हॉस्पिटल ब्रांच का फील्ड यहाँ पे आ गया। बट व्हाट दिस हॉस्पिटल ब्रांच फील्ड स्टोर्स, it stores the ID of hospital branch record. So ID of hospital branch record कहाँ पे है, कहाँ पे है,
हमारा जो हॉस्पिटल ब्रांच का जो इंस्टेंस है, सो व्हाट इज द इंस्टेंस ऑफ हॉस्पिटल ब्रांच, देन दिस HB। ये HB में क्या है, उसका आईडी है। किसका आईडी है, जो हॉस्पिटल ब्रांच हमने पहले क्रिएट किया था। इसीलिए हमने पहले हॉस्पिटल ब्रांच क्रिएट किया या इंसर्ट किया। सो एज सुन एज यू इंसर्ट दैट हॉस्पिटल ब्रांच रिकॉर्ड, that ID will be created. Salesforce do not create the ID of the record before creating the record. रिकॉर्ड क्रिएट होने से पहले कभी आईडी जनरेट नहीं होता है। जब रिकॉर्ड क्रिएट होता है तब सेल्सफोर्स उसका आईडी बना देता है। तो इसीलिए हमने पहले हॉस्पिटल ब्रांच का रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। नाउ नाउ सिंपली यू कैन डू, कहां पे है वो सारी डिटेल्स, HB में। सो HB में है तो मैं HB डॉट ID, as simple as that. Now semicolon, and now you can insert patient also. Insert pat. Okay. So I will press Control S. Once I press the Control S, अगर इसमें कुछ एरर रहेगा तो वो एरर बताएगा, अगर नहीं रहा तो नहीं बताएगा। We do have two errors here. So just go to this problem tab and let's see. लाइन नंबर 6 पे वो कुछ एरर दिखा रहा है। व्हाट एरर, कुछ सेमीकोलन मिसिंग है लाइन नंबर 8 पे, राइट। लाइन नंबर 8 8 8 8 8 8, ये है लाइन नंबर 8। वी डू हैव अ सेमीकोलन हियर। इस आई प्रेस ऑन कंट्रोल सेव, वो एरर चला गया है, राइट। नाउ वी डू हैव वन एरर। व्हाट इज दैट एरर, लाइन नंबर 6 पे है। व्हाट इज दैट एरर, होल्ड ऑन, Name spelling was incorrect. लाइन नंबर 6, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट नेम, राइट, सॉरी। ये नेम लाइन नंबर 6 पे हमने जो वेरिएबल लिया है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये ऐसा नेम है ही नहीं। तो वो पूरा नाम हमें डालना चाहिए HB डॉट नेम, NAME है, वो NAM आएगा सिर्फ, राइट। नाउ अगेन कंट्रोल प्रेस S। नाउ हियर वी डोंट हैव एनी एरर, कुछ भी एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम में। एंड देन दिस स्टार सिंबल इज आल्सो वेंट अवे, राइट। वो चला गया, मतलब हमारा कोड सेव हो गया है, राइट। जब तक वो स्टार रहेगा तब तक वो स्टार है, मतलब वो कोड आपके लोकल सिस्टम में ही है। ये कोड को अभी हमने क्या कर दिया, भेज दिया है, राइट। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये सेव हो गया है हमारे सिस्टम में, राइट। एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन व्हाट आर द स्टेप्स, यू नीड टू व्हाट, और यू कैन आल्सो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं। नाउ व्हाट इज दैट स्टेटमेंट, प्रिंट करने के लिए कुछ मैसेज, सिस्टम डॉट डीबग, राइट। ये आपने सिस्टम डॉट डीबग करके स्टेटमेंट है। एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा कि पेशेंट रिकॉर्ड इज इंसर्टेड सक्सेसफुली, ना। एंड देन उसका आईडी प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट ये कॉमा से बाहर आना, इन्वर्टेड कॉमा से, जस्ट प्रेस एस, प्रेस प्लस, एंड देन यू कैन हैव पैट डॉट आईडी। पेशेंट का आईडी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। क्यों क्यों ये प्रिंट करेंगे, क्योंकि जब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तभी तो आईडी जनरेट होगा ना। अगर ये आईडी हमें नहीं दिखेगा, दैट मीन्स दैट पेशेंट रिकॉर्ड इज नॉट इंसर्टेड, राइट। कंट्रोल एस, लेट्स सी इफ यू हैव एनी एरर्स। नो, वी डोंट हैव एनी एरर। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल ब्रांच इंसर्ट होने के बाद भी हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करते हैं कि हॉस्पिटल ब्रांच इंसर्ट हो गया। सिस्टम डॉट debug, right? Then what statement we will return over here, that hospital branch is inserted successfully। जस्ट कम, इस यहाँ पे आरो डाल देता हूँ, राइट। जस्ट बाहर आना है आपने, प्रेस प्लस, एंड देन बाहर आके HP डॉट इंसर्ट सिस्टम डॉट debug, HC नहीं है, HP है, राइट। HB डॉट ID।
Now that is solved. We have completed our code. We do have error? Yes. No, we don't have any error. Just press on Ctrl S. Okay. जैसे आप Ctrl S पे प्रेस करोगे आपका कोड अभी रेडी है. Now for execution, what are the steps? The step is you need to. अभी हमारे सिस्टम में हजारों अपेक्स क्लास हो सकते हैं और एक अपेक्स क्लास में हजारों मेथड हो सकते हैं. सो कौन से अपेक्स क्लास की कौन सी मेथड एग्जीक्यूट करनी है वो आपको सिस्टम को बताना पड़ेगा. तो हमें ये जो अपेक्स क्लास है जो अभी मैंने हाईलाइट किया है इसके अंदर फिलहाल तो एक ही मेथड है तो उसी को एग्जीक्यूट करना है, राइट. सो वी हैव टू टेल टू द सिस्टम दैट कि भाई हमारा ये अपेक्स क्लास है और उसके अंदर की ये मेथड आप एग्जीक्यूट करो, राइट. सो जस्ट सिंपली दिस अपेक्स क्लास, simply copy this apex class and just go to press control E on your keyboard. One another window will open. We call this window as execute anonymous window, right. Inside this execute anonymous window, what you need to do, you have to write down your class name. Once you write down the class name, you need to press enter. एंटर करने के बाद अगर रेड कलर में कुछ आता है तो जो डॉट आपने डाला था उसको फिर से एक बार डिलीट कर दो. डिलीट करने के बाद सिस्टम में खुद से वो क्लास को आइडेंटिफाई किया, एंटर मारो. एंटर मारने के बाद डॉट दो और वो मेथड का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा. वंस यू कैन सी दिस मेथड नेम, अगर इसमें 4 मेथड होते, राइट, तो यहाँ पे 4 ऐसे नेम पॉपुलेट होते, राइट. बट वी आर हैविंग ओनली सिंगल मेथड, so it will show only one this method. So just press enter. Once you press enter, give semicolon. Once you give the semicolon, you can press execute button. Once you press execute button, your system screen will get blur for some second. Once it is restored, that means your code is executed. और output देखने के लिए what can we do? We go to this log file and we are having this log file generated. Then just press on the recent one, right. यहाँ पे जो भी recent one है उसके ऊपर आप क्लिक करो. जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक आपका debug log file जनरेट होगा, राइट. ये debug log file ये बड़ी काम की चीज है, राइट. ये इसमें सारा आउटपुट दिखाएगा, सिस्टम में कितने कितने क्या क्या स्टेटमेंट यूज किए हैं, राइट. सिस्टम में क्या क्या कितना टाइम लगा, क्योंकि what we are doing over here that we are doing the operation at your local system. हम कहाँ पे ये सारी चीजें कर रहे हैं, हमारे लोकल सिस्टम में, राइट. और एग्जीक्यूशन के लिए वो कहाँ पे जाएगा, सर्वर को रीच करेगा. नाउ सर्वर कहीं दूसरी जगह पे है, राइट. सो our code will travel from our local system to server and again output will travel from your server to your local system. सो जो बीच में जो आपका स्क्रीन ब्लर हुआ था ना वो उसी टाइम वो उतने टाइम के लिए ब्लर होता है. यहाँ से पूरा आपका कोड निकल के जाता है सर्वर को और सर्वर आउटपुट भेजता है आपके सिस्टम को फिर से. तो उतनी देर के लिए आपका स्क्रीन क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है. नाउ एंड सिमिलरली फॉर एवरी एग्जीक्यूशन सिस्टम विल जनरेट अ डीबग फाइल. ये डीबग फाइल में सारा है, कितना टाइम लगा था जाने के लिए, आने के लिए, क्या क्या स्टेटमेंट यूज किए थे, सारा ही आपको बताएगा, राइट. नाउ तो ये जो है आप जब रियल टाइम में जब काम करते हो ये डीबग फाइल बहुत काम की चीज है. वी ऑलवेज हैव टू चेक दिस डीबग फाइल की कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये तो सिंपल प्रोग्राम है ये, राइट. इसमें कुछ बड़ा कुछ हम कर नहीं रहे, तो ये सीधा सा एग्जीक्यूट हो जाता है. बट रियल टाइम में कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं तो हमें समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो सारा प्रॉब्लम हम यहीं से चेक करते हैं. In my current project also we are analyzing this debug file. एक 10 साल पहले का सिस्टम था, 10 साल पहले उन्होंने सेल्सफोर्स में डेवलपमेंट किया था तो उन्हें उसको इम्प्रूव करना था. तो इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, ये डीबग फाइल को एनालिसिस करने के लिए डाल दिया कि इसको सीपीयू को कितना टाइम लगता है, राइट. क्योंकि इसमें बहुत जगह पे इन्वॉल्वमेंट होता है, आपके लोकल सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट. सीपीयू जो है आपका उसका कितना टाइम लगा, राइट. फिर आपके सीपीयू ने एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगा, वो सर्वर ने एग्जीक्यूट करने को कितना टाइम लगा, राइट. ये सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएंगे, राइट. बट यू डोंट हैव टू थिंक टू मच इनटू दिस.
You just click on this debug log and यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि hospital branch record is inserted successfully and this is the ID, right? Similarly, patient record is also inserted successfully and this is the ID, right? So in this way, uh, this is done, right? Related records are inserted. So in order to insert the patient record, first of all, या फिर कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए व्हाट इज द मैंडेटरी कंडीशन कि भाई उसका जो जो मैंडेटरी फील्ड्स है उसमें डेटा जाना चाहिए, राइट? बट जो रिलेशंस होते हैं, दैट इज मास्टर डिटेल रिलेशन और लुकअप रिलेशन, इट वो क्या स्टोर करता है? किसी रिकॉर्ड का आईडी, तो हमें उसमें आईडी ही डालना पड़ता है, राइट? So this is how the things are done. Now, the next very important concept is bulkification, right? Suppose यहाँ पे ये debug फाइल को मैं debug only निकाल देता हूँ 2 मिनट के लिए, तो हमारा पूरा फाइल दिखेगा आपको, राइट? तो इसमें if you search for DML, I will let you know what is this DML. DML, here it is. You can see this DML begin, right? जस्ट होल्ड ऑन, डीएमएल एंड ये बता रहा है कब शुरू हुआ है, हर एक स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूशन शुरू हुआ है, कब खत्म हुआ है, ऑल द थिंग्स इट विल शो, राइट? Everything it will show. Now can you this can you see this line, number of DML statement 2 out of 150? What does it means? Now DML stands for data manipulation language. DML stands for what? Data manipulation language. जो मैंने स्टेटमेंट आपको बताया, इंसर्ट मतलब जो जो स्टेटमेंट डेटा के साथ मैनिपुलेट करने के लिए यूज होती है, दैट स्टेटमेंट्स आर नोन एज डीएमएल स्टेटमेंट. नाउ सेल्सफोर्स में डीएमएल स्टेटमेंट कौन सी है? तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अनडिलीट, राइट, एंड अपसर्ट एंड मर्ज, राइट? ये 6 डीएमएल स्टेटमेंट्स है. कितने कौन से स्टेटमेंट है डीएमएल स्टेटमेंट? insert, is used for what? To create a new record. Delete, to delete the existing record. Undelete, to undelete the deleted record. जैसे आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप कोई फाइल डिलीट करते हो, इट स्टोर्स इन अ रिसाइकल बिन, है ना? और जब आपको लगा रहे ये गलती से डिलीट हुआ है ना, तो आप उसको क्या करते हो? उसमें जाके रिस्टोर करते हो. सो दैट इज अनडिलीट काइंड ऑफ अ थिंग. सिमिलरली आई विल शो दैट इन द कमिंग लेक्चर कि अनडिलीट क्या है, राइट? कैसे यहाँ पे भी एक रिसाइकल बिन होता है. अगर कोई चीज हम सेल्सफोर्स में से डिलीट करते हैं या हो जाती है गलती से, देन इट ऑटोमेटिकली रिस्टोर्स इन व्हाट? रिसाइकल बिन, एंड इट स्टेज देयर फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. वो नेक्स्ट 15 डे तक वहां पे वैसे ही रहती है. अगर आपने 15 डेज तक उसको रिस्टोर नहीं किया है, then you will lose that file or you will lose that record, right? 15 डेज तक आपको लिमिट है. आप 15 दिन के अंदर उसको अगर रिस्टोर करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज दैट रिकॉर्ड विल गेट वैनिश्ड. नाउ दैट इज अनडिलीट. ये कौन से स्टेटमेंट है फिर? इंसर्ट, अपडेट. अपडेट मीन्स व्हाट? टू अपडेट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड. delete means to delete the record. Undelete means to undelete the record. Then upsert means, upsert is the combination of two words, that is update and insert. अपडेट का ले लिया अप, इंसर्ट का ले लिया सर्ट, सो बन गया अपसर्ट. एंड देन मर्ज मीन्स व्हाट? अगर 2 रिकॉर्ड्स को मर्ज करना है तो उसके लिए मर्ज करते हैं. वी विल सी दिस इन द कमिंग क्लासेस. नाउ दीज आर द 6 डीएमएल स्टेटमेंट्स. नाउ टेल मी, हमारे सिस्टम में हमने कितने डीएमएल स्टेटमेंट यूज किए हैं? यू कैन सी ये डीबग लॉग बता रहा है कि 2 स्टेटमेंट यूज किए हैं, एंड आउट ऑफ व्हाट? 150. आउट ऑफ कितना? 150. So just go to this your code
ये कोड में आप देख पाओगे कि कितने हमने डीएमएल स्टेटमेंट, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 डीएमएल स्टेटमेंट डीबग लॉग ने भी बताया हमें, राइट। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये एक डीएमएल स्टेटमेंट है मेरी इंसर्ट, है ना, एंड ये सेकेंड डीएमएल स्टेटमेंट है इंसर्ट। सो 2 डीएमएल स्टेटमेंट हमने यूज किए हैं, और हमें कितने डीएमएल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं? सिर्फ 150 का लिमिट दिया है सेल्सफोर्स ने। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दैट मीन्स इन अ सिंगल कोड, एक कोड में आप कितने डीएमएल स्टेटमेंट यूज कर सकते हो? ओनली 150। मतलब मुझे इस चीज में, ये कोड में हमने कितने रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे? एक रिकॉर्ड। कौन सा? पेशेंट, और उसके लिए हॉस्पिटल ब्रांच हमने पहले इंसर्ट किया था, राइट। मतलब 2 रिकॉर्ड आप कंसीडर कर सकते हो कि ये प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसर्टिंग हाउ मेनी रिकॉर्ड्स? ओनली 2 रिकॉर्ड्स, राइट। दैट मीन्स एक कोड हमारा कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकता है? 150 रिकॉर्ड्स ओनली, क्योंकि सेल्सफोर्स ने बोला है कि आप 150 से ज्यादा रिकॉर्ड एक टाइम में इंसर्ट नहीं कर सकते हो। सो व्हाट डज इट मीन्स? क्या हम 150 से ज्यादा रिकॉर्ड्स कर ही नहीं सकते इंसर्ट? और ये लिमिट सेल्सफोर्स ने आखिर दिया क्यों है? 150 का रिकॉर्ड दिया क्यों है? नाउ द थिंग इज दैट दिस इज अ क्लाउड बेस्ड सिस्टम, राइट। ये आपका क्या है? क्लाउड है। नाउ बिफोर गोइंग फॉर दैट, take one example, right? Today I have visited the DMart, right, supermart, and I wanted to purchase some things. मुझे कुछ चीजें खरीदनी है, right? So I go to the DMart. So first of all मैंने कुछ फ्रूट्स उठाए, right? फ्रूट्स उठाने के बाद मुझे 10 चीजें लेनी थी, राइट। मैंने फ्रूट्स उठाए, फ्रूट्स उठा के मैं कहाँ गया? बिलिंग काउंटर पे गया, राइट। बिलिंग काउंटर पे गया और बिलिंग काउंटर पे जाके उसका बिल करवा लिया, राइट, फ्रूट्स उठाने के बाद। देन मुझे ऑयल लेना था, फिर मैंने ऑयल उठाया, बिलिंग काउंटर पे गया, ऑयल परचेस किया, राइट। फिर मुझे कुछ वेजिटेबल्स खरीदनी थी, तो मैं वेजिटेबल्स उठाए, वेंट टू दिस बिलिंग काउंटर, मेक द बिल। मुझे कुछ बिस्किट पैकेट्स लेने थे, आई वेंट टू द शेल ऑफ बिस्किट पैकेट्स, गेट इट, visit to the billing counter and get that. Is this the right approach? No, this is not the right approach. Rather हम क्या करते हैं? हम एक बास्केट लेते हैं, राइट, और जो भी चीजें मुझे चाहिए, राइट, वो मैं क्या करता हूँ? बास्केट में डालते जाता हूँ, और फिर फाइनली वो बास्केट में डालने के बाद मैं कहाँ पे जाता हूँ? I goes to the billing counter और सबका एक साथ ही हिसाब कर देता हूँ। This is the correct approach. So same thing is also applicable here. How? Now I am writing this code in my local system. ये मेरा क्या है? लोकल सिस्टम में मैं मेरा कोड लिख रहा हूँ, राइट। अभी हर बार जैसे ही मैं इंसर्ट स्टेटमेंट लिखूंगा, राइट, इंसर्ट स्टेटमेंट लिखूंगा, माय लोकल सिस्टम विल विजिट टू द सर्वर, और उस सर्वर के पास जाएगी और सर्वर में रिकॉर्ड इंसर्ट करेगी। फिर मेरे नीचे आऊंगा, मेरे को फिर से और एक इंसर्ट स्टेटमेंट मिली, वही सेम कोड में फिर से मेरा प्रोग्राम कहाँ पे गया? मेरा लोकल सिस्टम विल अप्रोच टू द सर्वर एंड सर्वर विल डू द रेस्ट ऑफ द टास्क, right? So in this code, how many times my local system approach to the server? 2 times. Why? Because I am having 2 DML statement here. Because DML statement ये ऐसी statement है जो सर्वर से ही डील करती है, right? Insert means what? हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, बट रिकॉर्ड का सारा कहां पे हमने स्टोर किया है? सर्वर में। देयर इज नथिंग इन आवर लोकल सिस्टम। सो मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, देन आई नीड टू विजिट टू व्हाट? सर्वर, राइट। नाउ अगर सेल्सफोर्स ने ये लिमिट नहीं दिया होता, 150 का लिमिट नहीं दिया होता, राइट, सेल्सफोर्स बोलते कि आप अनलिमिटेड स्टेटमेंट यूज करो, देन व्हाट वुड हैव हैपन? जस्ट अ सेकंड।
अगर सेल्सफोर्स ने ये लिमिट नहीं दिया होता, देन लोगों ने क्या किया होता कि अपने प्रोग्राम में हजारों डीएमएल स्टेटमेंट डाल दिए होते, राइट। सो हर बार क्या होता, आपका आपने आपका डेटा लिया, आपका जो भी डेटा है वो लिया, आपके लोकल सिस्टम से कॉपी किया, इंटरनेट से वो दौड़ता दौड़ता गया सर्वर के पास और सर्वर में डाल दिया, फिर से वो आपके लोकल सिस्टम में आया, फिर से नया डीएमएल स्टेटमेंट मिला, राइट, इंसर्ट बोला, फिर से उसने वो डेटा उठाया, दौड़ता दौड़ता सर्वर के पास गया, फिर से सर्वर में डेटा इंसर्ट किया, फिर से दौड़ते दौड़ते आपके सर्वर के पास आया, राइट। फिर तीसरा मिला, चौथा मिला, हर बार वो क्या करेगा, घूमता ही रहेगा। सो एक तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डिले होगा, राइट, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डिले होगा, इंटरनेट पे ट्रैफिक बढ़ेगा, राइट, इंटरनेट पे ट्रैफिक बढ़ेगा, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर्वर के पास, सर्वर अभी ये तो मेरी सिंगल सिस्टम है, मगर at this time also millions of customers और millions of users are using the Salesforce, बहुत सारे लोग Salesforce यूज कर रहे हैं, उन सबका ही डेटा दौड़ते दौड़ते कहां पे जाएगा, सर्वर के पास। तो सर्वर किसको किसको ऑपरेट करेगा एक टाइम पे, देन सर्वर हैंग होने के चांसेस है, राइट। सो जैसे बिलिंग काउंटर पे, आप बिलिंग काउंटर पे एक बंदे के पास जाओगे, राइट, बिस्किट का पैकेट उठाया, उसको बोलेंगे भाई बिल कर, फिर 5 मिनट के बाद जाएंगे, वेजिटेबल्स उठाया, उसको बोले बिल कर, वो 10 बार के पैसे ही लेता बैठेगा क्या आपसे, पैसे परचेस करेगा, आपको दे देगा और पैसे ले लेगा, फिर छुट्टे का ये सारे चीजें। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच। सो रादर सेल्सफोर्स ने क्या बोला, जैसे सुपरमार्केट क्या वाले क्या बोलते हैं, आप एक बास्केट लो, राइट, आप एक बास्केट लो, सारा सामान जो आपको खरीदना है वो बास्केट में डालो, और वो बास्केट लेके जाके उसका बिल करो। सो सिमिलरली हमें भी यहाँ पे वही चीज करना है, बास्केट यूज करना है, राइट। सो वो बास्केट क्या है, एंड सारी चीजें क्या है, दैट वी विल डिस्कस in the tomorrow session, right? So just I will write one more code here, so understand. So students, do you understand this concept till today, till what I have taught you? Is there any doubt till this point? Okay, so not an issue. That what we will do, we will discuss the remaining things on tomorrow, right? So Yes, sir. okay, we will discuss this remaining things tomorrow, and Sonali, you can stop the recording.